So hello everyone, welcome back to today's class. And in this video, we will be discussing about what is the difference between a BSc degree and a BTech degree. Which degree is better for you and according to your interest, what should we pursue? So you are watching Sinzo and this is your mentor DB. So let's proceed with BSc versus BTech degree which is right for you. So let us move forward. So in this presentation, we'll look about the career options, how much can you grow with each degree, and what is the competition in each degree, where can you work, which field can you move forward with the degrees. Okay, so let us start from BSc degree. Okay. So let's start from BSc degree. So a bachelor's degree means bachelor's of science emphasizes theoretical knowledge and critical thinking. ठीक है. अब देखो, एक आईआईटी में एक आईआईटी तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मगर आप बीएससी डिग्री आईआईटी से भी कर सकते हो. ठीक है. जेई देने के बाद आपको बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, यू कैन डू बीएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी एंड यू कैन डू job in IT sector as well, because in doing jobs in IT sector mostly they want means how much is your coding knowledge, right? So you can definitely do a job which is same as an engineer, but what thing matters is the college. The most important thing is the college. Okay, so nowadays, previously it was only 3 years, but right now NEP 2020 मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो हर डिग्री है उसका लगभग पीरियड हो गया है 4 years, और अगर आप बीएससी डिग्री करने के बाद एमएससी डिग्री करोगे तो वो हो जाएगा 1 year. ओके, और अगर आप 3 year का डिग्री करोगे बीएससी डिग्री तो आपका जो मास्टर्स होगा वो होगा 2 years. सो ऑलमोस्ट दोनों मिला के टोटल हो गया 5 years. अगर आप 4 year प्रोग्राम में हो तो भी 5 year आपको लग जाएंगे मास्टर्स डिग्री करने में, और अगर आप 3 year डिग्री करोगे तो भी 5 years लग जाएंगे. तो टाइम तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तो कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. उसके अलावा बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे बीएससी जूलॉजी, बीएससी बोटानी, बीएससी फिजियोलॉजी, ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. ठीक है. Now let us move forward for the definition of BTech degree. Okay. So bachelors of technology centers on practical application and technology expertise. Okay. In BSc you learn basically most of the theoretical things, but in BTech degree you learn most of the practical things, because most मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो प्रैक्टिकल्स को दिया जाता है. तो बीएससी डिग्री का जो ड्यूरेशन होता है, सॉरी बीटेक डिग्री का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 years का होता है. ठीक है, उससे कम का नहीं होता. पहले भी 4 years होता था, अभी भी 4 years होता है. और जो कोर ब्रांचेस होते हैं वो है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एटसेट्रा. बहुत सारा बीटेक का सब्जेक्ट्स है. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिकल तो है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, बहुत सारा चीज़ है. ठीक है. Emphasizes on engineering problem solving and technical skills mastery. So this is the basic difference between a BSc and a BTech. Now let's move forward to the next slide. Okay. Acha. So what is the curriculum of a BSc degree? Fundamental of sciences, strong foundation in physics, chemistry and biology principles. Okay. Advanced specialization, deep dives into niche topics like classical mechanics, electromagnetics. ये तो सारे एग्जाम्पल है, मतलब फिजिक्स का ही एग्जाम्पल है. मैं फिजिक्स का ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स दिया है. ठीक है. तो रिसर्च कंपोनेंट जो है इंक्लूड्स रिसर्च प्रोजेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर thesis writing. Okay, now let's move forward to the curriculum of BTech degree. Applied engineering, use of scientific knowledge for design practical solutions, include designing projects, lab work, real world problem solving, industry एक्सपोजर, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स. ठीक है. अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है मगर मतलब आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो तो आपका कैरियर वही पर ही मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा अगर आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे. ठीक है. तो कॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपका कैरियर जो डिसाइड करता है. तो इसके बाद देखते हैं जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है फॉर बीएससी. ओके. सबसे पहले जो रिसर्च साइंटिस्ट है, जो टॉप लेवल का रिसर्च साइंटिस्ट है, उसको लगभग
मिलता है $85,000 पर ईयर। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज स्लाइटली लेस देन दैट, ओके। और प्राइवेट लैब, सो लैब टेक्नीशियन सैलरी इज अराउंड 45,000, डेटा एनालिस्ट इज फॉर 75,000 एंड एडिशनल फील्ड्स। सो आप बीएससी डिग्री करने के बाद, अब बेसिकली जो लोग बीएससी डिग्री करते हैं वो आइदर एमएससी परस्यू करते हैं, एमएससी परस्यू करने के बाद आइदर बीएड करते हैं, आइदर नेट सेट देते हैं, और या तो प्रोफेसरशिप में जाते हैं, या तो उनको जीआरएफ मिल जाता है। जीआरएफ मिलने के बाद या वो लोग मतलब प्रोफेसर हो जाते हैं, या 5 इयर्स रिसर्च करने के बाद प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, या तो स्कूल टीचर हो जाते हैं। और आपका मतलब बीएससी डिग्री के बाद मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं वो या तो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में आते हैं, और या तो रेलवे में जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ लोग यूपीएससी में जाते हैं, एमबीए में भी जाते हैं, ठीक है, यूपीएससी में भी जाते हैं, एमबीए में भी जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बीटेक, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्री, और look, $90,000, $80,000, $110,000, okay. This is for top. Unless and until you go to a top, you are not going to pay that much amount of rupees, at least in India, okay. So you need a very good sharp knowledge about that industry, okay, which you are working with. So now let's compare the salaries, okay. So you can see the starting salary of a BSc is it is very hard as a BSc to get a job, because maximum those general degree colleges, they do not have placement cells, as well as if they are having also placement cells, they are inactive, okay. So मेरा कॉलेज में जो था, मेरा कॉलेज पूरा गवर्नमेंट था, ठीक है। एक जनरल, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रोफेसर्स बहुत अच्छा है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। मगर अगर आप मतलब आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो तो ऐसे कॉलेज आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू हैव फुल सपोर्ट बाय द प्रोफेसर्स दैट यू परस्यू रिसर्च, यू डू गुड स्टडीज, ओके। सो मगर मैंने जो चीज़ देखा है वहाँ पर प्लेसमेंट सेल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, क्योंकि कि हमारे जो कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट सेल है, ठीक है। तो कैसे किसी को भी जॉब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप आपको जॉब चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आप बीटेक डिग्री परस्यू करो, ठीक है। तो लगभग $50,000 से इतना नहीं होता बीएससी डिग्री के लिए। इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इफ इट इज़ अ टायर 1 कॉलेज और टायर 2 कॉलेज, okay. Preferably tier 1 college, IITs, NITs, GFTS, then you can land a job with the BSc degree as well, okay. So this is the average salary, almost touching 70,000, okay. I am talking about the top 1%, okay. And BTech degree, the salary is not this much high nowadays, because as a fresher you are not going to pay that much amount of salary. So it is touching, you can see that almost $75,000 per annum, but the reality is something different. So this data is not yet correct, okay. एंड द मैक्सिमम सैलरी, मतलब एवरेज सैलरी भी इतना नहीं है, एवरेज सैलरी भी थोड़ा इससे कम है। मगर आप बीटेक में बहुत ही अच्छा कैरियर ग्रोथ आप कर सकते हो, लेकिन बीएससी डिग्री में थोड़ा वक्त लग जाता है। उसके बाद आप मास्टर्स करते हो, उसके बाद पीएचडी करते हो, फिर आइदर प्रोफेसरशिप में जाते हो, या तो कोई भी रिसर्च, मतलब इसरो, डीआरडीओ, कोई भी फील्ड हो, आप वहाँ पे जाके नौकरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अच्छा, अब देखो फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग, ठीक है। आप सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो कि आपको थियोरेटिकल अच्छा लगता है, आपको रिसर्च अच्छा लगता है, कि क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो कैरियर गोल्स, मतलब आप 5 इयर्स में या 10 इयर्स में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप देखो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितना कितना है, मतलब कितना आप एफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद देखो जॉब मार्केट क्या है, मतलब वो डिग्री परस्यू करने के बाद आपको क्या क्या फील्ड्स में जॉब मिलेगा, या कौन से फील्ड्स में आप जा सकते हो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिला के आपको आपका डिसीजन बनाना है, ठीक है। थोड़ा डीप डाउन रिसर्च करो आप, ठीक है। उसके बाद अपना रिसर्च करो, किसी का मतलब किसी ने एडवाइस दे दिया उसे सुनकर मत आप उसका एडवाइस मत लो। सपोज आपको कोई भी रिलेटिव आ जाता है तो आपको देता है बेटा ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो, तो लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर डिग्री में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहले रिसर्च करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसर्च करना सीख गया वो हर एक फील्ड में मतलब अच्छा करेगा, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। चाहे वो एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन।
Okay, so what is the advantages of BSc and BTech? Okay, great for those seeking research and academic careers, preferred for engineering roles and technology development. मतलब जो लोग रिसर्च अपना कैरियर ओरिएंटेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है और थियोरेटिकल रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है, वो लोग बीएससी में जाए, और जो लोग जिनको जल्दी जॉब चाहिए वो लोग जाए बीटेक डिग्री में, ठीक है। तो आप क्या क्या हायर स्टडीज कर सकते हो after BTech and BSc? Let's have a look. Okay, so let's have a look on higher studies after BSc and BTech. Okay, so हाँ, हो गया, चलो, हाँ, so higher studies after you can do a postgraduate degree. Option for BSc is MSc, MPhil, PhD. Postgraduate degree for BTech, MTech, MBA सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग। अब एक चीज देख लो, एमबीए दोनों बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक कैरियर हो सकता है। बहुत कम परसेंट बच्चे जो लोग बीएससी या एमएससी करते हैं वो एमबीए जाते हैं, मगर एमबीए कॉलेज, ठीक है, एमबीए कॉलेज एक इंजीनियर से ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एमएससी को, क्योंकि एमएससी से बहुत कम बच्चे जाते हैं, कैट को क्रैक करते हैं और जाते हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हर फील्ड से बच्चा मेरे कॉलेज में आए। हर फील्ड से, मतलब जो टॉप का बच्चा होगा वो चाहते हैं कि हर फील्ड से, चाहे वो बीबीए हो, बीसीए हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, जाए डॉक्टर हो, लॉयर हो। थोड़ा नॉन इंजीनियर्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। कई कई कॉलेज में एमबीए, मतलब अगर आप इंजीनियर नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो लोग बीएससी परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एमबीए भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, रिसर्च वर्सेस एप्लीकेशन, ये तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हो गया। बोथ द डिग्रीज हैव गुड, वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। सो सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ द वीडियो। सो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी एंड बीटेक। सो टॉप बीएससी कॉलेजेस हर, जो कि जेई एडवांस क्रैक करके आप जा सकते हो, वो दैट इज आईआईएससी बेंगलोर। ओके, you can go to the top international colleges such as Stanford, Harvard, then MIT, Massachusetts Institute of Technology. Okay, so IIT में बीएससी भी, आईआईटी में भी बीएससी है, एनआईटी भी में, मतलब एनआईटी में भी है बीएससी। हर एक जो टायर वन कॉलेज है वो कॉलेज ऑलमोस्ट, मतलब आपको देता ही देता है, ऑफर भी करता है बीएससी डिग्री, बीटेक डिग्री भी ऑफर करता है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप बीटेक में जाओ, और या आपको अगर रिसर्च अच्छा लगता है, आपके साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो बीटेक करने के बाद भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, और बीएससी करने के बाद भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। सो दोनों फील्ड अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। सो यू चूज अकॉर्डिंगली व्हाट इज योर इंटरेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय।